السلام علیکم ساتھیوں، ایک بہت ہی عجیب اور حیرت انگیز واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ٹرین کے بیچ ایک بابا جی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو تیزی سے آتی ہوئی ٹرین کے ساتھ کیا معجزہ ہوا، چلیے سنتے ہیں مل کر یہ واقعہ آخر تک۔ آپ نے ضرور اس واقعے کو سننا ہے اور پہلے ہمارے چینل سید زیب ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ پہ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے ایک حافظ قرآن بابا جی کے ساتھ جو عراق میں رہا کرتے۔ ان کا نام تھا محمد ظفر۔ ان کی عمر یہی کوئی لگ بھگ 65 سال تھی، لیکن اس عمر میں بھی وہ بہت جوان لگا کرتے۔ ان کی صاف سرخ و سفید رنگت دیکھ کر ہر کوئی ان کی تعریف کیا کرتا۔ اللہ کے نیک بندوں کی محبت یوں ہی دل میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں قرآن پاک کی بہت محبت ڈالی ہوئی تھی اور اسی شوق میں انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا۔ ظفر بابا جوانی کے دور میں تھے، اس وقت انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر کے اپنے خاندان میں عزت بنا لی تھی۔ بچپن سے وہ بہت ذہین تھے، اس لیے کم عمری میں ہی اپنا نام انہوں نے روشن کیا اور خاندان کا بھی۔ انہوں نے صرف قرآن پاک کو حفظ نہیں کیا تھا بلکہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ان کو ترجمے کے ساتھ زبانی یاد تھا۔ ان کا قرآن پڑھنے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ جو سنتا وہ ایک بار سن کر ان پر فدا ہو جاتا اور کہتا کہ آپ کی قرأت بہت ہی پیاری ہے اور آواز بھی۔ ان سے قرآن پاک سیکھنے کے لیے سب اپنے پاس ان کو بلائے بھی کرتے۔ وہ پاس کی مسجد میں امام بھی تھے اور قرآن پاک بھی بچوں کو پڑھایا کرتے۔ جس جگہ رہا کرتے وہاں کچھ لوگ مسلمان تھے اور زیادہ تر غیر مسلم بھی تھے۔ غیر مسلموں کے گھر پاس ہی تھے۔ ویسے تو ان کی آپس میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، سب اپنے کام سے کام رکھا کرتے اور کوئی بھی ایک دوسرے کے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتا، لیکن انہی میں ایک شخص تھا جو کہ اپنے دل میں مسلمانوں کی نفرت رکھتا اور وہ چاہتا تھا یعنی ان کے بیچ رہ کر مسلمانوں میں غیر مسلموں میں پھوٹ ڈلوا دے، لڑائی کروا دے، اور ان کی گلی میں وہ اسی مقصد کو لیے بیٹھا رہتا۔ جب بھی ظفر بابا اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بیزاری سے کہتا، یہ آواز میرے کانوں میں کیوں آتی ہے، نہ جانے یہ بابا کیا پڑھتا رہتا ہے جس کو سن کر میرے دل میں تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے، چپتی ہے یہ آواز مجھے، میرا دل گھبراتا ہے۔ اس کا دوست اسی گلی میں رہا کرتا، اس گھر میں حافظ قرآن بابا کی آواز آیا کرتی اور نیک بابا جب بھی قرآن پاک پڑھتے تو وہ اپنی نیند سے جاگ جاتا اور بہت ہی چلاتا۔ ایک بار کی بات ہے جب اللہ کے نیک بندے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ رات کا وقت تھا، اس وقت وہ آدمی اپنے دوست کے گھر آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ مل کر نشہ کر رہا تھا۔ نشہ اس قدر زیادہ ہوا کہ اس کو نیند آنے لگی۔ اس وقت بابا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ قرآن پاک کو ختم کر لیں، اس لیے بڑی ہی محبت کے ساتھ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ وہ بہت ہی پیار سے قرآن کو پڑھ رہے تھے، اگر کوئی اور آواز سنتا تو اس کا دل جھوم جاتا، اتنی خوبصورت آواز میں وہ قرأت کی جا رہی تھی۔ جہاں جہاں وہ آواز جا رہی تھی سب اپنی پرسکون نیند کے مزے لے رہے تھے، لیکن وہ پڑوسی جو کہ ان کی دشمنی میں گھلا جا رہا تھا وہ اپنی نیند سے جاگ گیا اور وہیں سے چیخ کر کہنے لگا، بند کرو یہ پڑھنا جو بھی پڑھ رہے ہو تم، ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے تم نے، ہم سو رہے ہیں اور تم ہماری چین کی نیند کو خراب کر رہے ہو۔ وہ بے ہوشی میں چلایا جا رہا تھا، لیکن بابا ظفر اپنی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مست ہوئے جا رہے تھے۔ آپ کو اس کی آواز ہی نہیں آئی جبکہ سارا محلہ جاگ اٹھا تھا۔ وہ پڑوسی گلی میں آ کر بلند آواز سے آپ کو گالیاں دینے لگا تو لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور کہا کہ اتنی خوبصورت آواز کو سن کر تو تمہیں سو جانا چاہیے، نہ کہ تم بے چین ہو کر شور کرو۔ اس کو غصہ آ گیا، دھاڑ کر بولا، تم اس بوڑھے کو منع نہیں کر رہے بلکہ مجھے آ کر کہہ رہے ہو کہ میں کیوں چلا رہا ہوں، اس کی آواز سے میری نیند خراب ہوئی ہے، ابھی میں جاتا ہوں۔ وہ بابا کے دروازے پر آیا اور کہا کہ بند کرو یہ سب، کیا تم نے روز کا تماشا لگایا ہوا ہے، مجھے نہیں سننی تمہاری آواز، اور جو کچھ تم پڑھتے ہو جانے کون سے جادو منتر کیے جا رہے ہو، یہ شعر و شاعری بند کرو۔ یہ بات سن کر بابا ظفر نے پیار سے کہا، بیٹا یہ شعر و شاعری نہیں ہے، تم کون سے زمانہ جاہلیت والی باتیں کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں بیٹا، لیکن میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ پاک کی کتاب ہے اور اس کتاب کو پڑھنے سے دلوں کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، میں کسی کو پریشان کیوں کروں گا۔ وہ بولا، بہت ہو گئی ہے، اب تم نہیں پڑھو گے۔ اس طرح اس نے یہ بات کہی تھی کہ وہ خاموش ہو گئے، اور پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، یہی سوچ کر بحث نہیں کی۔ یہ کوئی ہار ماننے والی بات نہیں تھی، پر وہ غیر مسلم خوش ہو گیا کہ میں نے انہیں ڈرا دیا اور میں اسی طرح ڈراتا رہوں گا۔ اب مجھے اس بابا کو روکنا پڑے گا ورنہ اس کے لیے تو ہر کوئی دیوانہ ہو جائے گا۔ آج اس کی آواز پر سفیدہ ہے، کل کو کون سا زہر گھول کر میرے لوگوں کو کھلا دیا جائے، سب بہک جائیں گے۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر دوست کے گھر رہنے لگا کہ بابا پر نظر رکھنی ہے۔ بابا جی پڑوسی ہونے کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے، لیکن دن میں تو آپ کو قرآن پاک پڑھنا ہی تھا اور پڑھانا ہی تھا۔ آپ اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھا رہے ہوتے اور جب مدرسے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تو وہ باہر سے چیختا کہ بند کر دو یہ سب، ورنہ تمہیں اس محلے سے نکلنا پڑے گا۔ آپ نے پھر صبر کیا اور سوچا کہ میری جو اوپر والی منزل بنی ہوئی ہے گھر کی، میں وہاں جا کر پڑھا دیا کروں گا۔
ताकि मेरे पड़ोसी को ज्यादा आवाज नहीं आए। वो कमरा अंदर की तरफ था। आपने फैसला लिया और ऊपर जाकर कुरान पाक रख दिए। फिर बच्चे ऊपर मंजिल पर जाकर आपसे पढ़ने लगे, लेकिन उस आदमी को इस बात से भी एतराज था क्योंकि वो एक हल्की आवाज भी सुनने के हक में नहीं था। कुरान पाक के अल्फाज उसके दिल को जलाते थे। अब मौलवी जफर बाबा इस बात पर गौर करने लगे कि ये बात मुझे हल्के में नहीं लेनी चाहिए। ये मेरे लिए और उसके बाद मेरे मजहब के लिए बड़ा ही मसला खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि ये शख्स सबके दिल में नफरत डाल देगा। बाबा जी अब बहुत फिक्रमंद होने लगे थे, क्योंकि कोई अच्छा इंसान अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर सकता है लेकिन दीन के लिए नहीं, गुस्ताखी सह नहीं सकता। वो इस्लाम के नाम पर उंगली उठाने वाला अगर कोई हद से बढ़ जाए तो उसको प्यार से रोका जाता है। बाबा ने कहा कि इसको प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद मेरा नरम रवैया इसके गुस्से को कम करने में मेरी मदद करे, शायद वो सीधी राह पर चलना शुरू कर दे। बात करता हूँ शख्स से मैं। ये सोचकर आप उसके पास आए तो उसने आपसे कहा, यहाँ क्यों आए हो? आप कहने लगे, देखो मेरे बेटे, तुमको मेरे कुरान पाक पढ़ने से एतराज है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें परेशानी ना हो। उसने कहा, झूठ की भी कोई हद होती है। तुम मुसलमान शातिर होते हो, तुम भी एक निहायत तेज और चालाक बूढ़े हो। बाबा जी ने उसकी बात को बर्दाश्त किया और कहा कि तुम जो बोलते हो इन सब बातों का मैं बुरा नहीं मानूंगा, बस तुमको यही कहने आया था कि गुस्सा थूक दो। इस बात पर वो और भड़क गया और बाबा जी की बहुत बेइज्जती की। आपने मुनासिब यही समझा कि वहाँ से चले जाए। बाबा जी खामोशी से अपने घर आ चुके थे, लेकिन सोच लिया था कि नेकी की दावत में देता रहूंगा। इस्लाम इसी बात का तो दर्ज देता है कि मोहब्बत करो, मोहब्बत बांटो, प्यार से पैगाम दूसरों तक पहुंचाओ। आप कभी उसको खाने के लिए कोई चीज अब भिजवाते तो खाना तो वो रख लेता, पर दिल से नफरत नहीं निकल रही थी। यहाँ पर बाबा जी मजे तो ज्यादा थे और लोगों का लगाव आपकी तरफ बढ़ भी रहा था, क्योंकि आपकी आवाज और फिर आपका इखलाक ऐसा था कि जो गैर मुस्लिम थे वो भी आपकी तरफ खींचने लगे थे। उनको समझ तो नहीं आता था कि आप क्या पढ़ते हैं, लेकिन बस वो आपकी बहुत इज्जत करते थे, सिवाय उस शख्स के जो कि बस यही सोचता कि बाबा को किस तरह तकलीफ पहुंचाए। एक दिन बाबा जफर अपने घर में बैठे इबादत कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त आपके शागिर्द घर में मौजूद थे। आपने दरवाजा खुलवाया तो बताया गया कोई लड़की खड़ी हुई है और बहुत बेकस और मजबूर लग रही है, रो भी रही है। बाबा जी किसी के दर्द को बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने कहा, अच्छा उसको अंदर भेज दो। आपके बुलाने पर अब वो लड़की घर के अंदर आ गई। उसका चेहरा ढपा हुआ था, यानी उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आप तो कभी किसी को नजर उठाकर देखते ही नहीं थे, सिर्फ इसलिए उसका गम सुनकर आपने उसे अंदर बुलाया था। कहने लगी, मैं बहुत ही परेशान हाल हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बाबा जी ने कहा, कहो बेटी, तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? वो बोलने लगी, इस मोहल्ले में एक गुंडा रहता है, उसकी बदमाशी हद से बढ़ती जा रही है। आप उसको जानते हैं, ये वही है जो आपकी किताब को बुरा भला कहता है और आपका सख्त दुश्मन है। आप समझ गए इशारा किस तरफ है। बाबा जी ने कहा, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। तो क्या तुम उसकी शिकायत लेकर यहाँ आई हो? मैं उसकी शिकायत लेकर तो यहाँ आई हूँ, ये बात सच है, लेकिन मैं आपके साथ ज्यादती होते हुए भी नहीं देख सकती और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन एक इंसान तो हूँ, पर एक मजबूर बेचारी अपाहिज औरत आपके लिए क्या कर सकती है, जबकि खुद उसके हाथों अजियत पा रही है। बाबा जी ने कहा, बेटी ये बात तो ठीक नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे इस काम से रोके। वो मुस्कुराती हुई वहां से जाने लगी और कहा कि मैं जानती थी आप जरूर मेरी मदद के लिए हामी भरेंगे, क्योंकि आपके मैंने बड़े ही चर्चे सुने हैं। आप दुखी दिलों का सहारा हैं और लोगों के काम आते हैं। बस यही बात आपसे कहने आई थी कि उस शख्स का कुछ करे, वरना कोई माँ बेटी उसे महफूज नहीं है। बाबा ने कहा, क्या वो यहीं रहता है? यानी मैंने सुना है कि ये जगह उसकी नहीं है, घर कहीं और है, पर वो दोस्त के घर रहता है। जी हाँ, वो दूसरी जगह रहता है, पर नशा करने यहाँ पर आता है और सबसे बड़ा निशाना आप है, तभी दिन रात इसी खोज में रहता है आपको कैसे तकलीफ पहुंचाए। बाबा जफर सोचने लगे, उस आदमी ने तो हद कर दी है। मैं उससे अच्छा बनकर मिल रहा हूँ, लेकिन उससे तो लड़कियों की इज्जत भी महफूज नहीं है, उसको समझाना पड़ेगा। वो रोती हुई लड़की आपको याद आ गई। आप फिर से उससे मिलने के लिए गए तो पता चला कि वो पटरी के दूसरी पार किसी बस्ती में गया हुआ है। अब चूंकि आप ये इरादा कर चुके थे कि मैं उसे समझा कर रहूंगा, तो बाबा ने कहा, आज तो मैं उससे मिलूंगा, क्योंकि एक लड़की की इज्जत का मामला है। आप पटरी पार करने ही वाले थे कि वहां से ट्रेन ने आने का इशारा दिया, तो आप कुछ देर के लिए रुक गए। इससे पहले आप कभी उस बस्ती की तरफ नहीं गए थे कि बाबा जी उस तरफ आते, पर चूंकि नेकी थी दिल में, इसलिए आप ट्रेन जाने का इंतजार करने लगे। जब ट्रेन वहां से गुजर गई तो आपने पटरी पार की और बस्ती में उस आदमी को तलाश करने लगे। उसका नाम सब जानते थे, क्योंकि वो वहां का नामी गिरामी गुंडा बदमाश था और उससे सब डरते थे। बाबा ने पूछा कि फला बंदा कहाँ रहता है, तो किसी ने बता दिया कि वो उस जगह है। आप वहां पर पहुंचे। बाबा ने कहा, सुनो बेटे, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने आपकी तरफ देखकर नागवारी से कहा, तुम यहाँ भी चले आए? तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? ये मुसलमानों की बस्ती नहीं है, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है और तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। देखो, तुम मुझे पसंद ना करो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ किसी ने
कोई हक नहीं दिया है कि तुम यहाँ की लड़कियों के साथ बुरा सलूक करो। उसने कहा, तुमसे किसने कहा? और तुम मेरे पास शिकायत करने आए हो या मुझसे बदला लेने के लिए आए हो? बाबा ने कहा, मैं ना शिकायत लगाने आया हूँ, ना बदला लेने के लिए आया हूँ, ना ही तुम्हें कोई चोट देने वाला हूँ। बस कह रहा हूँ कि ये लड़कियां हमारी माएं बहनें होती है और अच्छी बात नहीं है कि हम सरेआम उनका तमाशा बनाएं। उनकी इज्जत में ही हमारी इज्जत है। आपकी बात सुनकर उसके दोस्त कहने लगे, तुम हमारे दोस्त के लिए ऐसा ना कहो, हमारा दोस्त ऐसा नहीं है और जिसने भी तुमसे ये बात कही है वो इसकी दुश्मन होगी। बाबा ने कहा, मैंने देखा है ना ये किस तरह लोगों से बात करता है। अब तक मैं खामोश इसलिए था क्योंकि मैं चाहता था कि ये हमारे दीन इस्लाम की खूबसूरती को देखे और ये देखे कि हमारे दीन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया जाता, बल्कि इस्लाम मोहब्बत से फैला है और इस्लाम में मोहब्बत ही सबसे पहले रखी जाती है। इसने मुझे कुरान पाक पढ़ने के लिए मना किया। वो तो पढ़ना मैं बंद नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर किया है कि इसके कानों में वो आवाज ना आए। ये मेरी कोशिश होती है, पर अब एक लड़की के दुख की ये वजह क्यों बन रहा है? वो जब तक खामोश था अचानक कहने लगा, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने बुरा कर दिया है आपके साथ, मैं शर्मिंदा हूँ। आप उसके इस तरह कहने पर चौंक पड़े क्योंकि अभी तक तो वो गुस्से में खोल रहा था और अचानक से उसका पैंतरा बदल गया। कोई अजीब बात ही थी, लेकिन आपने कहा अगर ये बदलना चाहता है तो क्यों ना मैं इसका साथ दूं। वो कहने लगा, मुझे एहसास हो गया आपकी बातों से मेरा दिल बदल गया है। अब मैं ना उस लड़की को तंग करूंगा और ना ही आपको टोकूंगा। आप आराम से अपने घर में अपनी किताब पढ़ते रहें। बाबा ने टोकते हुए कहा, किताब नहीं, वो उम्मुल किताब है, यानी वो सब किताबों की माँ है और उसे किसी इंसान ने नहीं लिखा है। वो बोला, तो किसने लिखा है? जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अब मैं चलता हूँ, मुझे उम्मीद है अब तुम कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालोगे। वो चुप करके आपकी बात सुनता रहा। बाबा जी को दिल में खुशी हुई कि चलो मेरी बातों का इस पर असर हुआ, थोड़ा बहुत तो असर हुआ होगा, तभी तो इतना अच्छा रवैया रख रहा है। बाबा जी अपने घर आ गए और कुरान पाक पढ़ाने लगे। अब आप इस बात पर मुतमईन थे कि चलो एक मेरा दुश्मन था, अल्लाह ताला ने उसके दिल को भी साफ कर दिया। इस तरह अब मेरा काम आसान हो जाएगा और दीन को मैं आसानी से फैला सकूंगा। आप कुरान पाक पढ़ाते, उसका तर्जुमा भी लोगों को समझाते तो लोगों को इस्लाम की तालीम मिल रही थी। अब उस लड़की ने आपके पास भी आना बंद कर दिया था और इस बात पर आपका दिल सुकून में आ गया कि एक लड़की को अल्लाह पाक ने उस शख्स की शैतानी सोच से महफूज रखा। वो गैर मुस्लिम बाबा जफर का पड़ोसी ही बन गया था। जब आपको ये बात पता चली तो आप खुश हुए। वो भी कोशिश करके बाबा की खिदमत करता। इतना बड़ा बदलाव उसके अंदर आ गया था। सब लोग भी बड़े हैरान थे कि ये बाबा से चिढ़ने वाला ऐसे इज्जत और मान कैसे दे रहा है। इसलिए आप उसका ख्याल भी रखा करते और उसके लिए खाना भी भिजवाया करते। आप शागिर्दों से कहते, देखो कोई चाहे कितना ही बुरा सलूक क्यों ना करे आपके साथ, कोई कितना ही बुरा करे, आपको उसके साथ वैसा बिल्कुल नहीं करना। देखो उस शख्स को देखो, इतनी जल्दी अल्लाह ताला ने उसको सुधार दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं बोलता है, उल्टा खानों की तारीफ भी करता है। अल्लाह के नेक बंदे तो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। बाकी गैर मुस्लिम तो आपकी बहुत इज्जत किया करते, चाहे वो पटरी के उस पार रहने वाले हो, चाहे वो आपके मोहल्ले में रहने वाले हो। बाबा जी उसी तरह कुरान पाक पढ़ाते रहे और लोगों को दीन की तालीम देते रहे। हर तरफ सुकून और अमन ही था। खासतौर पर उस शख्स की तरफ से कोई भी शर नहीं फैल रहा था। दिन अच्छे गुजरने लगे कि एक रात जबकि आप कुरान पाक पढ़ रहे थे, दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। कोई दरवाजा ऐसे बजा रहा था जैसे बड़ी ही मुश्किल का शिकार है और उसके पीछे कोई लगा हुआ है। आपने दरवाजा खोला तो वहाँ वही लड़की खड़ी हुई थी जो बारिश में भीगी हुई थी। आप घबरा गए और कहा, क्या हुआ, तुम इस वक्त इस तरह यहाँ पर क्यों? उसने कहा, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत देंगे? मैं बड़ी ही मुसीबत में हूँ, मेरी जान को खतरा है, वो मुझे मार डालेगा। बाबा ने उसको अंदर बुला लिया क्योंकि उस वक्त उसकी हालत कुछ ऐसी ही हो रही थी। अंदर बुलाकर आपने उसको चादर दी। वो बारिश के ठंडे पानी की वजह से कांप रही थी। उसको अपनी बेटी की तरह ही आपने माना था, इसी वजह से बाबा जफर तो एक बाप की निगाहों से उसे देख रहे थे। वो लड़की कहने लगी, इस वक्त आपके पास नहीं आती तो कहाँ जाती, लेकिन वो शख्स हद से गुजर गया है और अब मेरी इज्जत मेरी जान को खतरा है। इसी वजह से मैं आपके पास आ गई क्योंकि इस जगह मेरा कोई भी नहीं है। बाबा ने अब तक उसे नहीं पूछा था कि वो कौन है, कहाँ रहती है। आप अल्लाह वाले थे और ऐसे ही होते हैं अल्लाह वाले, जो कभी किसी के बारे में नहीं जानते हैं, ना ही पूछते हैं। बाबा ने कहा, क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई घर वाला नहीं है? वो बोली, नहीं, मैं अकेली औरत हूँ। उस पटरी के पार जो घर बने हुए हैं मैं वहाँ पर रहती हूँ, लेकिन वो आदमी मेरे पीछे पड़ा है। पहले तो वो आपके कहने पर चुप भी हो गया था, लेकिन अब फिर से वो मेरे पास आकर मेरे साथ ज्यादती करना चाहता है और इस जगह आप जैसा अच्छा बंदा कोई नहीं। अभी मैं आपके पास आई हूँ बड़ी उम्मीद लगाकर, आप मुझे सहारा देंगे। बाबा ने कहा, देखो घबराने की जरूरत नहीं है बेटी, मैं तो अपनी ही बेटी की तरह तुम्हें समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए नामहरम हूँ। मैं तुम्हारा असल बाप तो नहीं हूँ। तुम्हारी इस परेशानी को दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हारा मेरे घर में रहना ठीक नहीं है। आधी रात है और कोई बात को बढ़ाने में देर नहीं करता है। यहाँ के लोग जाने क्या समझेंगे एक लड़की को मेरे पास देखकर। तो वो बोली, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप मेरे बारे में सोचिए कि मैं किस मुश्किल घड़ी में हूँ और आप ही हैं जो मुझे इससे निकाल सकते हैं।
बाबा बोले, देखो इस वक्त तो रात हो रही है और तुम्हारा घर जाना तो बेहतर नहीं है, क्योंकि ट्रेन किसी वक्त भी आ जाती है और हर तरफ अंधेरा भी है। तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर नहीं जा सकता और उस आदमी से भी मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर उसे खबर मिल गई कि रात में तुम मेरे पास आई हो तो वो कहीं शोर न मचा दे। बाबा की बात सुनकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसने कहा, काश मेरा कोई बाप होता तो आज मेरी इज्जत महफूज होती, मेरा कोई भाई होता तो मेरी ढाल बनकर खड़ा होता, मेरा शौहर होता तो मैं अमान में रहती। अकेली औरत का यहाँ कोई नहीं है। इस तरह की बातें करके वो बाबा जी को जज्बाती करना चाह रही थी, लेकिन बाबा जफर तो समझदार इंसान थे और वो उसकी बातों में नहीं आते। फिर भी आपने उसे कहा, अच्छा रो नहीं, अंदर कमरे में तुम चली जाओ, वहां पर जाकर आराम करो, फिर सोचते हैं सुबह क्या करना है। पर वो जैसे कुछ समझ ही नहीं रही थी। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और उसकी आवाज उस पड़ोस में जाने लगी जहाँ पर अब भी वो आदमी बैठा हुआ था। अब जब पड़ोसी के पास एक लड़की के रोने की आवाज आई तो सबने बाहर आकर पूछा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो किसी ने कहा, ये तो बाबा जफर के घर से आ रही है। उनके घर में तो कोई औरत नहीं रहती, ये कौन है जो इस वक्त धाड़े मार मार कर रो रही है? पड़ोसी बाबा जी का दरवाजा बजाने लगे। बाबा जफर थोड़ा सा घबरा गए, क्योंकि वो क्या जवाब देते, लोग जो सवाल करते। लेकिन फिर भी आपने अल्लाह ताला का नाम लेकर दरवाजा खोला और कहा, क्या हुआ? आप लोग रात के इस पहर क्या पूछने आए हैं? हमें आपके घर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही है, क्या वो अंदर मौजूद है? आपका वहाँ पर बहुत नाम था और बाबा जी कभी झूठ नहीं बोलते थे। अगर झूठ बोलते कि नहीं कोई नहीं है तो लोगों के सामने आपकी क्या इज्जत रह जाती। सबसे बड़ी बात तो आपको अपने मजहब इस्लाम की फिक्र थी कि उसके लिए कोई कुछ न कहे, कि इस्लाम के नाम पर कोई उंगली ना उठाए, कोई ये ना कहे कि देखो हाफिज कुरान है और बूढ़े होकर एक लड़की की इज्जत से खेलते हैं। और वो आपकी सगी बेटी थी नहीं, दूसरा वो गैर मुस्लिम थी। आपको फिक्र सिर्फ अपने दीन की थी, अपनी जान की नहीं थी। बहरहाल बाबा जी ने बात संभालते हुए कहा, हाँ एक लड़की अंदर मौजूद है, लेकिन वो मुझसे मदद मांगने आई है, इस वजह से उसको मैंने अंदर कमरे में भेजा हुआ है। अब जो शरपसंद लोग थे, यानी उस शख्स के साथी, उन्होंने मौके से फायदा उठाते हुए कहा, अच्छा तो तुमने एक लड़की के साथ बुराई का काम किया है और अब छुपा रहे हो? बाबा ने कहा, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो खुद मुझसे यहाँ पर मदद मांगने आई है। अच्छा है आप लोग आ गए हैं, अब उसका मसला सुने और मिलकर उसकी बात को समझे और इस काम में मेरा साथ दें। लोगों ने कहा, अच्छा तो अपनी गलती को छुपाने के लिए, बल्कि अपना गुनाह छुपाने के लिए हम पर डाल रहे हो। बुलाओ उस लड़की को अंदर से, पूछते हैं आखिर क्या मसला है उसके साथ। पूरा मोहल्ला वहाँ जमा हो चुका था। वो लड़की वहाँ रोती धोती आ गई और उसके ऊपर से उसकी चादर हटी हुई थी, वो चादर जो बाबा ने उसके सर पर डाली थी। और यही नहीं, उसका नकाब भी चेहरे से गायब था और वो बेपनाह खूबसूरत लड़की थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। लोग तो देखकर चीखने लगे और कहा, ऐसी हालत में इसको अंदर रखा है। बाबा भी कहने लगे, अरे बेटी तुम्हें मैंने चादर दी थी, तुम्हारा चेहरा तो ढका हुआ था और तुमसे कहा था मैंने अच्छी तरह इस चादर को ओढ़ कर रखना। उसने कहा, लेकिन जिसने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया है वो क्या मुझसे कह रहा है कि चादर को ओढ़ना? बाबा जी उसकी अजीब बात सुनकर उसकी तरफ देखकर कहने लगे, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? वो बोली, कहाँ का इल्जाम? इल्जाम लगाने की बात है ही नहीं। जिस इंसान ने मेरे साथ बुराई कर ही दी है तो क्यों ना मैं अपने लोगों को उसके बारे में बताऊं, और अपने मजहब के लोगों को ही अपने बारे में बताऊंगी, जो मेरे मुहाफिज है, जो मेरी हिफाजत करने वाले हैं। बाबा को बात समझ नहीं आ रही थी कि उनमें से एक शख्स निकलकर बाहर आया और उसने कहा, ये सच कहती है, ये हमारी बहन है, लेकिन इस जगह उसका कोई भाई नहीं है। हाँ इसका भाई नहीं है, लेकिन हमने इसके सर पर हाथ रखा है और हमारे होते हुए एक लड़की को अपने घर में रात के इस पहर रखते हो। तुम पर तो पहले ही हमें शक था, लेकिन क्या करें, मौका हाथ नहीं आ रहा था। बाबा जफर बात की नौयत को समझ गए थे कि उनके लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई है और ये करने वाली वो लड़की है, पर उसके पीछे कौन था? आप उस लड़की की तरफ मुड़े और कहा, तुमने किसके कहने पर क्यों किया है ये सब? मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि तुम मेरे पास छत ढूंढने आई थी और तुमने मुझे ही अपना हथियारा बना दिया। क्या कभी मैं ऐसा सोच सकता हूँ? उसने कहा, क्यों नहीं सोच सकते, तुम्हारी नजर तो मुझ पर बहुत दिनों से है और ये बात मैंने इन लोगों को बताई थी, पर ये तुम्हारी इज्जत करते थे और कहते थे कि ये कुरान पढ़ाने वाला है, भला ऐसा कैसे कर सकता है? देख लो आज तुम्हारा सारा भांडा फूट गया। बाबा ने कहा, मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकता खुदा को मानो, क्योंकि तुम तो जिन खुदाओं को मानती हो उनका तुम्हें वास्ता देकर उल्टा मेरा ही नुकसान होना है। पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। तुम तो खुद मेरे पास चलकर इस शख्स की शिकायत लेकर आई थी। किस शख्स की शिकायत? किसकी बात कर रहे हो? उस आदमी का चमचा जो उसके पास ही खड़ा हुआ था कहने लगा। बाबा ने कहा, तुम्हारा दोस्त? अच्छा बुलाते हैं अपने दोस्त को। जब वो सामने आया तो उसकी आंखों में एक चमक थी, ऐसा लग रहा था कि जीत के जश्न में वो वहां पर आया है और जश्न मनाना चाहता है। बाबा ने कहा, इसी की शिकायत करने इसी से बचकर यहाँ आई थी ना? जिंदगी और मौत का सवाल था।
मेरी अमान में आना चाहती थी। मैंने कहा था कि लोगों के साथ मिलकर इस मसले को हल करेंगे, पर तुमने तो मुझे ही फंसा दिया। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है मियां जफर? ये कदरे बूढ़ा इंसान था जो बाबा जी से भी बड़ा था। उसने कहा, ये इसका शौहर है, इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और इससे बचकर यहाँ पर क्यों आएगी? बाबा जी समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है। इतना बड़ा झूठ उनके साथ बोला गया। आप अकेले थे और सिवाय अल्लाह के आपके साथ कोई नहीं था। वो मुसलमान भी जो आपको बहुत मानते थे वो भी वहां जमा हो गए और कहने लगे, बाबा जी आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। आप तो बहुत दीनदार इंसान थे और गैर मुस्लिम भी आपको मानते थे, लेकिन आपने तो हमारे इस्लाम का नाम डुबो दिया। किसी की बीवी को इस तरह आधी रात के वक्त अपने घर में रखना और फिर ऐसी हालत में हमें शर्म आती है। हाफिज कुरान ऐसा कैसे कर सकता है? वो लोग जो खुदा को नहीं मानते थे वो तो अलग ही आपको बोल रहे थे, लेकिन वो लोग जो अल्लाह को मानने वाले थे वो सब भी आपकी तरफ अब उंगली उठा रहे थे। बाबा जी को कोई शर्मिंदगी तो नहीं थी क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं था, पर दुख था इस बात पर कि ये सब जो मेरी इज्जत करते हुए न थकते थे और आज ये सब मिलकर मेरे खिलाफ इतनी बातें कर रहे हैं। कोई ऐसा शख्स भी नहीं था जो कह सके नहीं बाबा जी आप ऐसे नहीं हैं। बाबा जी उस वक्त खुद को तन्हा महसूस कर रहे थे। बाबा जी ने अल्लाह का नाम लिया और कहा, तो फिर आप लोग मुझे क्या सजा देना चाहेंगे? सजा हम नहीं देंगे, सजा वो देगा जिसकी ये बीवी है, क्योंकि तुमने इसी की बीवी के साथ सबसे बड़ा गुनाह किया है। अब लोगों ने उस शख्स को आगे कर दिया। उसके चेहरे पर बड़ा ही घमंड था, जैसे सारी बाजी उसके हाथ में थी। उसने आंखों ही आंखों में बाबा जी की तरफ देखकर कहा, कैसे तुम्हें नीचे दिखाने में कामयाब हो गया? बाबा उसकी तरफ देखकर कहने लगे, तुम्हारी बीवी के साथ मैंने जो कुछ किया है उस पर तुम्हें यकीन है? उसने कहा, यहाँ पर खड़े हुए लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं तो क्या मुझे यकीन नहीं होगा? मैं तो आपके कहने पर समझाने पर सुधर गया था और इज्जत करने लगा था। ये सब जानते हैं। हाँ हाँ हम सब जानते हैं कि इसने आपको तंग करना बंद कर दिया था, बल्कि ये तो आपकी तारीफ किया करता कि ये मुसलमान होकर हमारा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन आज जो आपने किया है इसके तो हम सब गवाह हैं। वो शख्स बोला, तो अब जब गवाही इतने सारे लोग दे रहे हैं तो सजा क्या देनी चाहिए? बाबा ने अपना सर झुकाकर कहा, जो दिल चाहे दे दो, पर मेरे दीन को बदनाम नहीं करना। इसमें मेरे इस्लाम का कोई कसूर नहीं है। जो किया है मैंने किया है। एक इंसान कोई भी बुरा काम करता है, किसी का दिल दुखाता है या किसी की जान लेता है या किसी के खिलाफ वादे करता है, लोगों के दिल खराब करता है, किसी का हक खाता है, धोखाधड़ी करता है, ये सब काम वो खुद करता है। उसके मजहब का इसमें कोई कसूर नहीं होता। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये मत कहें कि बड़ा कुरान पढ़ने वाला था और देखो इनके इस्लाम में किस तरह औरत की इज्जत नहीं की जाती। बाबा ने कहा, बस मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम लोग मेरे दीन को कुछ नहीं कहना, बाकी जो इज्जत देना चाहो मुझे दे सकते हो। आप तो बस चाह रहे थे कि जो आपने काम किया ही नहीं ऐसा गंदा इल्जाम आप पर आ गया और वो इल्जाम हट जाए। और वो लड़की जो अभी थर थर कांप रही थी बहुत ही सुकून से खड़ी अपने शौहर के पास आ गई। बाबा जफर को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कोई इस तरह भी खेल खेल सकता है, लेकिन आपने हर मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। उस शख्स ने कहा कि अभी तो रात हो रही है, सुबह हम इनको ऐसी सजा देंगे कि जिसको यहाँ के लोग याद रखेंगे और कोई कभी किसी की माँ बेटी पर गंदी नजर नहीं रखेगा। बात सुबह तक टाल दी गई थी, लेकिन उस शख्स ने कहा, इस बूढ़े पर कड़ी नजर रखो और यहाँ पर कोई एक रहे जो इसको देखे कि ये कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा। इसके हाथ में वो किताब नहीं होनी चाहिए, पता चले सुबह तक ये हमारे ऊपर एक और मुसीबत नाजिल कर दे। ये कोई अच्छा इंसान नहीं है जो किताब इसके हाथ में है, इससे ये बहुत बड़े काम कर सकता है। मैंने सुना है अपने बड़ों से कि ये किताब जादू के लिए इस्तेमाल होती है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। वो ऐसी बातें कह रहा था और आपका खून खोल रहा था कि अल्लाह ताला की उस अजीम किताब के बारे में वो ऐसी लोग बातें कह रहा है। वो कहने लगा कि इस किताब को पढ़कर बहुत से बड़े बड़े अमल करते हैं ये लोग और दिमाग को पलट देते हैं। मेरी बीवी भी इन्हीं के इसी अमल की वजह से यहाँ आई है, वरना आधी रात को ये यहाँ क्या करती? वो औरत भी कहने लगी, हाँ हाँ सही कहा, मेरे शौहर ने, इस आदमी ने मुझ पर जादू चला दिया था और मैं अपने घर से उठकर इस जगह आ गई, फिर इसने मेरे साथ यहाँ पर वो सब किया। वो रोने लगी। वो अपनी बीवी को चुप कराने लगा और कहा कि डरो नहीं और ना ही घबराने की जरूरत है, सुबह इसका काम तमाम हो जाएगा जो कुछ तुम्हारे साथ किया गया है। वो वहां से जा चुके थे। बाबा जी तो जैसे मिनटों में जमीन पर आ गिरे थे, लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की शान ऊंची करता है। आप चुप थे और वक्त का इंतजार कर रहे थे। आपकी निगरानी के लिए वहां पर एक आदमी को छोड़ दिया गया जो वहीं बैठकर आपको घूरता रहा। क्या आप किताबे इलाही यानी कलाम पाक को खोलकर तो नहीं देख रहे? लेकिन उसे क्या मालूम था कि बाबा जी तो हाफिज कुरान है और आपके सीने में कुरान पाक है। आप तो आंखें बंद किए मुस्कुराते हुए कुरान पाक की आयत का विर्द करते रहे, यहाँ तक कि आपने पूरी रात में कुरान पाक पढ़ डाला और उसे इतना सा भी पता नहीं चला। यही तो मौजा है कुरान पाक का, यही तो मौजा है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिलों में कुरान पाक को महफूज करके कह दिया कि इसकी हिफाजत करने वाला मैं खुद हूँ। इसको जलाने वाले, इसके साथ बेदबी करने वालों का अंजाम क्या होता है ये तो वो शख्स उस वक्त समझ नहीं सकता। मरने के बाद या जिंदगी में ही उसे
लग पता जाता है उसने कलाम इलाही की बेअदबी करके, तौहीन करके कितना बड़ा अजाब अपने सर पर मोल लिया है। और यही काम वो शख्स कर रहा था। सुबह तक कोई खबर नहीं थी कि बाबा जी कुरान पाक पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहे हैं, ए अल्लाह, अगर इसी हालत में मेरा दुनिया से जाना लिखा हुआ है तो मैं तेरी रजा पर राजी हूँ, लेकिन मैं अपने दीन को बदनाम करके इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। तो मेरे दीन को हमेशा बुलंद रखना, इसके परचम को हमेशा ऊंचा रखना कि कोई ये न कह सके एक मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम औरत के साथ ज्यादती की और वो कुरान पाक पढ़ाने वाला था। या अल्लाह पाक, ये बदनामी का दाग लेकर मैं दुनिया से जाना नहीं चाहता। आप उस शख्स के सामने बैठे दुआ मांग रहे थे। यही तो कमाल है इस्लाम का, यही तो शान है अल्लाह ताला की कि बंदा दिल में अल्लाह अज़्ज़-व-जल को याद करके उसे दुआ मांग सकता है। यही तो फर्क है एक मुसलमान के खुदा में और दूसरे मजहब के खुदाओं में कि वो किसी शक्ल में सामने होते हैं, जबकि अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है। उसकी इबादत करने के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, बस हमारे दिल में और हर जगह वो मौजूद होता है। हर जगह उसकी निशानियां मौजूद है, हम बस उसका नाम लेते हैं और हमारी दुआ कबूल हो जाती है। यहाँ पर आप अल्लाह ताला को याद करके उसे दुआ कर रहे थे, खैर ही खैर मांग रहे थे, और वहाँ पर वो शख्स उन लोगों के साथ मिलकर मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि ये बूढ़ा तो हमारे चाकू की नोक के नीचे आ गया है, अब हम जो चाहे कर सकते हैं, बताओ हम क्या करें। तो उसके एक साथी बोला, उसने तो हमारा जीना वैसे ही दुभर कर दिया है और ये नहीं रुकेगा, हर रोज कुरान की तिलावत करता रहेगा और मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इस बाबा को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, हमें इसे एक बार और हमेशा के लिए रोकना होगा। वो शरपसंद शख्स बोला, तो क्या करना चाहिए? अरे तुम्हारा दिमाग तो हमसे ज्यादा चलता है, बताओ जिसकी बीवी के साथ उसने इतना बुरा काम कर दिया वो उसके साथ क्या कुछ कर सकता है? वो हंसते हुए बोला, उसको जान से मार देगा वो, तो बस हम उसे जान से मार देंगे और लोग हमारा साथ देंगे, क्योंकि जो कुछ उसने तुम्हारी बीवी के साथ किया है उसके बदले तो लोग उसकी जान जाने पर भी कोई अफसोस नहीं करेंगे, क्योंकि सारा मोहल्ला उसके खिलाफ है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। वो लोग मजाक बनाने लगे और कहा कि चलो फिर ठीक है, हम जाकर पंचायत में अपना ये फैसला सुना देते हैं कि मेरी बीवी के साथ ये सब हुआ है, तो लोग मेरी बात तो मानेंगे ही। उसके बाद वो अपने बड़ों के पास आया और कहा, हमने ये फैसला किया है। तो उनमें से एक आदमी जो के था तो गैर मुस्लिम लेकिन अच्छे दिल का मालिक था, उसने कहा, लेकिन इतनी बड़ी कीमत तुम लोगे उससे? वो बूढ़ा इंसान है और मरने के करीब है, उसको इस तरह तुम सजा दोगे तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा क्यों होगा? फैसला मुझ पर छोड़ा गया है और मेरा फैसला यही है। मैंने अपनी बीवी से भी पूछ लिया है और उस बेचारी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जो कुछ उसने मुझे बताया है उसके बदले तो मैंने सुबह तक उस बूढ़े को छोड़ दिया, गनीमत है, बड़ी बात है। और अब मैं तुम लोगों के पास आकर ये बात पूछ रहा हूँ तो ये भी मेरी शराफत है, अब मुझे ये काम करना ही है। उसने उस शख्स की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, चलो अब उस बूढ़े को उठाओ और लेकर चलो। जफर बाबा के पास वो लोग आए। बाबा जी उस वक्त वजू बना रहे थे, फजर की अजान जो हो गई थी। सोचा था नमाज पढ़ लेता हूँ, पर उन लोगों ने आपको नमाज पढ़ने का मौका नहीं दिया और कहा, तुम जो कुछ भी जादू टोना करने वाले हो अब यहाँ नहीं चलेगा, चाहे तुम इबादत के नाम पर हमारे सामने ढोंग रचाओ, तुमने जो जुर्म किया है उसकी तुम्हें सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। बाबा को उन लोगों ने सोचने का वक्त नहीं दिया, लेकिन चलते चलते आपने कुरान पाक जो हमेशा आपके साथ रहा करता, सफर पर भी आप उसको ले जाया करते थे, अपने हाथ में ले लिया, जो उनको नजर नहीं आया। आपने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए आसमानों और जमीन के मालिक, तू हिफाजत करने वाला है, तू सब देखता है, तू सब जानता है, तू सही फैसला करने वाला है, तू मुनसिफ है, तू मेरा सबसे बड़ा हामी मददगार है और हिफाजत करने वाला है। बस मैंने अपना सारा मामला तुझ पर छोड़ दिया, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं तुझे मानता हूँ और तुझे ही मानता रहूंगा, तू मेरा गवाह बन जाना, तू मेरा जामिन बन जाना, मैं सारा मामला तुझ पर छोड़ता हूँ। ए अल्लाह पाक, तू ही सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर कहकर आप उनके साथ चल पड़े। रश बढ़ता जा रहा था, लोगों को जैसे जैसे मालूम हो रहा था सब लोग वहाँ मंजर देखने के लिए जमा होना शुरू हो गए कि बाबा को लेकर जाया जा रहा है। बाबा के चेहरे पर दुख था लेकिन अल्लाह ताला पर यकीन था। लोगों का क्या भरोसा, लोग तो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं और आज वही लोग किस तरह जमीन में दफन करने के लिए बाबा को लेकर जा रहे थे। और अब वो पूरा काफिला पहुंचा पटरी के पास और ट्रेन के आने में भी कुछ वक्त बाकी था। दरअसल उस आदमी ने फैसला किया था कि वो बाबा को पटरी पर रस्सियों से बांध देगा और ट्रेन उनको कुचलकर चली जाएगी, क्योंकि बाबा ने पटरी पार करके ही उसकी बीवी तक पहुंचने की कोशिश की थी और जो उसने किया था उस अंजाम को तो उसने भुगतना ही था। अब उन लोगों ने जबरदस्ती बाबा जी को पटरियों पर लिटा दिया और रस्सी से कस कर बांध दिया। उस शख्स ने बाबा के हाथ में कुरान मजीद देखा और कहा, ये देखो अपनी किताब यहाँ तक ले आया, ले लो इसके हाथ से। वो लोग बाबा से कुरान पाक छीनने लगे। बाबा ने कुरान पाक को थाम लिया, जाने नहीं दिया। वो छीनते रहे लेकिन बाबा के अंदर गैबी ताकत आ गई थी। वो लोग अपने नापाक हाथ उस पाक कलाम को लगा नहीं पा रहे थे।
ट्रेन चंद मिनटों में आने वाली थी और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि बाबा के पूरे जिस्म को मिटाकर रख दी थी। वो बदमाश शख्स बोला, जाने दो, अच्छा है, अपनी किताब समेत कुचल जाएगा। अब ट्रेन ने सीटी बजाई। लोगों की भीड़ जमा थी। कुछ ऐसे थे जो बाबा के दोस्त और चाहने वाले थे। अब वो रोने लगे और उसके पैर पड़ गए। छोड़ दो इनको, इतनी भयंकर सजा मत दो, बूढ़े हैं, नेक इंसान है। वो बोला, जो मेरी बीवी के साथ किया है उसके बदले तो ये मौत भी कम है। तुम लोग हट जाओ वरना तुमको भी ट्रेन के आगे डाल देंगे। वो 100 से ज्यादा थे। मुसलमान इक्का दुक्का थे, लेकिन क्या करते, बस मरते हुए देख रहे थे बाबा को। और वो आदमी अपनी बीवी और साथियों के साथ जीत का एहसास करते हुए ट्रेन को खौफनाक रफ्तार से आते हुए देख रहा था। ट्रेन बहुत पास थी। बाबा ने सीने में कुरान पाक छुपा लिया कि उसकी बेअदबी ना हो। वो तैयार थे मरने के लिए। उन्होंने कलमा पढ़ लिया। ट्रेन सीटी बजाती और पास आ रही थी और पास। सबकी सांसें रुकी हुई थी। जमीन और आसमान उस जुल्म को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्रेन बाबा से टकराने वाली थी, कुछ अजीब बात हुई। इससे पहले बाबा जफर से ट्रेन टकराती, उनको कुचलकर जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके आगे निकल जाती। वो तो यूं मुड़ गई जैसे खुदाई ताकत से टकराकर दूर जा गिरी हो। हाथ में कुरान लेकर पटरियों के बीच बंधे हुए बाबा जी जैसे ट्रेन के उलटने का पूरा मंजर देख रहे थे। बाबा ने आवाज बुलंद की और कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की हम्दो सना मैं बयान करता हूँ, करता रहूंगा। उसकी ताकत सबसे बड़ी है, वही सबसे बड़ा है। बाबा जी की पुकार सारा शहर सुन रहा था। सारे शहर में आपकी आवाज गूंजती रही। वो मर्द सदमे से खड़े थे। जो कुछ उन्होंने देखा था उस पर यकीन करने की हालत में नहीं थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बाबा ट्रेन के नीचे कुचल जाएंगे, लेकिन उसके बजाय उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक मौजज़ा देखा। सबने दौड़कर बाबा के पास आकर उनकी रस्सियां खोली। वो शख्स और उसके साथी एक कोने में खड़े बाल नोचने लगे। ये कैसे मुमकिन हुआ? लोगों ने बाबा को खोला। बाबा सीने में कुरान पाक लिए खड़े थे। पहले आप उल्टी हुई ट्रेन के पास गए जहां चीखो पुकार मची हुई थी, लेकिन बाबा ने कहा, लोगों तसल्ली रखो, कुछ नहीं होगा। फिर आपने कुरान पाक खोला और अब बगैर डरे जोर जोर से कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान पाक के जादुई अल्फाजों का असर हुआ। ट्रेन अपने आप ही सीधी हो गई। न किसी की जान गई, न कोई जख्मी हुआ, यहाँ तक कि किसी को एक खरोच तक नहीं आई। ट्रेन वालों ने बाबा जफर के साथ चिल्लाकर अल्लाहु अकबर कहा। अब दुश्मन के होश ठिकाने आए। अपने किए की संगीनी और कुरान पाक की ताकत को समझते हुए बाबा के पास भागे हुए आया और उनसे माफी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ कर दें, मुझे माफी की भीख दे दें। बहुत अफसोस है बाबा, आपको नीचे दिखाने के लिए किस हद तक हम चले गए। आपके मजबूत ईमान का मुझे इल्म नहीं था, मुझे माफ कर दे। उलटती हुई ट्रेन को मैंने देखा है अपनी आंखों से, मुझ पर खौफ तारी हो गया है। मैं सबके सामने आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने ये चाल चली थी, मेरी बीवी को धमकी देकर मैंने आपके घर भेजा था, एक बार नहीं 2 बार, और यही मेरा मंसूबा था कि लोगों के सामने आपको ट्रेन के पास लाकर ट्रेन के जरिए कुचलवा दूं। लेकिन देख ली मैंने ताकत कुरान पाक की, देख ली मैंने ताकत उस खुदा की जिसको आप मानते हो। ये मुआवजा हुआ है, इतना बड़ा मुआवजा कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। उसकी माफी मांगने पर सबके होश ठिकाने आए। उस मुआवजे से जो लोग कुरान पाक को नहीं मानते थे, उन मर्दों ने अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने कुरान की सच्चाई और बाबा के ईमान की ताकत को माना। उनमें से हर एक ने कुरान पाक को चूम लिया जो उनकी निजात का जरिया था। जो मुआवजा उन्होंने अपनी आंखों से देखा था उसने उनके दिलों को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन से पूरा मोहल्ला जो कभी अल्लाह वालों से बुग़्ज़ रखता था, इस्लाम की दौलत उनको मिल गई। साथ में वो शख्स भी सुधर गया और फिर कभी उसने बाबा जफर के खिलाफ कोई काम नहीं किया, बल्कि आपका शागिर्द बन गया।